Wondering how much amount of blood you are going to lose after your first intercourse? Well, in today's video we will be discussing about why on earth bleeding happens to women on her first intercourse, how much is the amount going to be, what is normal, what is abnormal, when to visit doctor and when to manage by yourself. But if you are new, hi, my name is Dr. Mitali Rathod. I am consultant obstetrician and gynecologist practicing since 5 years, and on this beautiful YouTube channel we talk about periods, hormones, reproductive health and so much more. So make sure you subscribe and watch till the end. Beginning with first उबलता हुआ question कि bleeding आखिर होता क्यों है. So if you are not well aware regarding the concept of hymen, virginity, seal the deal, I would highly recommend कि आप ये वाला वीडियो पहले देखें. अगर आपने देखा है, brilliant, perfect. So as you know that hymen is a small piece of tissue that guards the opening of the vaginal canal, and when during the first penetrative intercourse, when a penis enters inside the vagina, during that time the partially covered hymen is going to get ruptured or that is going to get break. So because of that you are going to have a few amount or few ml of blood loss, sometimes onto some emergency situations, that is what we call as postcoital tear. Bleeding बहुत ही ज़्यादा होता है, and I'm also going to share you one incident from my residency that was life threatening, my friend. अभी ये तो पता चल गया कि ब्लीडिंग क्यों होता है, बट आखिर कितना होता है. The way sex or intimacy has introduced inside our life that has created a long lasting impact. और सबसे बड़ी डरावनी चीज़ है ना, हमको यही लगती है. So the answer to this question is the amount of bleeding is going to be very different for different women. As you know that as many as 12 different types of hymen has been noted. So अलग अलग hymen के types में अलग अलग तरीके से bleeding होगा, but in general there is going to be 2 to 4 ml of blood loss. That is going to be painful for some, painless for some, depending upon the hymen, type of the hymen and position of hymen. Also how much time you have spent in the foreplay, कितना pressure है, कितना force लगा हुआ है, ये सारी चीज़ों पे भी ये चीज़ें depend करती है. The amount is going to be 2 to 4 ml, but the consistency is going to be brightish red on initial days, and towards the end मतलब ये bleeding 2, 3, 4 दिन तक रहेगा. That is going to be similar like the menstrual blood, मतलब brownish black color का होगा, and with advancing days वहाँ पे pain, bleeding, itching, rashes, जो सारा inflammation है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा. So now you know that what is normal. So ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, that is considered as normal, but there are going to be 1 to 2% women who faces alarming amount of blood loss. That is what we called as postcoital tear. मतलब सेक्स के दौरान वजाइनल इंजरी हो गई है, वजाइनल टेयर हो गई है, और उनमें ऐसा होगा दैट आफ्टर गेटिंग डन विथ इंटरकोर्स देयर इज गोइंग टू बी प्रोफ्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस. फ्रेश ब्राइट रेड ब्लड होगा, उसके साथ साथ थोड़े से ब्लड क्लॉट भी पास होंगे, आपको एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा, आप बेहोश भी हो सकते हो, आपकी पल्स रेट बढ़ सकती है, आपको ऐसा लगेगा डिजीनेस एंड गिडीनेस, चक्कर आ रहे हो वैसा लगता है. Into those case situations I can understand majority of couples when they are after getting married, they get intimate for the first time, or on their first wedding night only these kind of situation happens. So I would say ये सारी चीज़ें normal consider मत करें. These are the things that happens to only 1 to 2%, but that could be you. So if you feel that after getting done with intercourse after 30 minutes ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा bleeding है, clots है, dizziness हो रहे हैं, ये सारे symptoms है, then visit the doctor immediately. Don't suffer in silence. इसमें शर्म वाली कोई भी बात नहीं होती. एक्चुअली एक पेशेंट की स्टोरी बताना चाहूँगी. एक्चुअली आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टोरीज हियर टू शेयर, बट टू समराइज फ्यू. सो आई वॉज इन माई सेकेंड ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन. VS हॉस्पिटल में रोटेशन पे थी मैं 9 months की, और नाइट ड्यूटी थी मेरी ऑब्स्टेटिक ICU में, और एक कपल आया. एंड ड्रॉ दैट पिक्चर इन साइड योर माइंड. देर वर सम 10-15 people comes in 108 emergency ambulance. If you look at the girl that was recently married मतलब उनका फर्स्ट डे ही था, अभी शाम को ही उनका निकाह हुआ है, और अभी वो रात को इमरजेंसी में आए तकरीबन 12 से 2 बजे के बीच में. आप देखो तो वो नई नवेली दुल्हन थी, हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, इतनी सारी बैंगल्स पहनी हुई थी, लाल कपड़े में थी वो, और वगैरह वगैरह. शी लुक्ड वेरी वेरी पेल. उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं. जब भी कुछ उनको पूछो सारी चीज़ों में वो ना 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 ही बोल रही थी. एंड शी वॉज सेइंग कि उनको बहुत ही ज़्यादा पीरियड्स आ रहे हैं.
बट जब हमने एग्जामिन किया, हमने हमारे सीनियर्स को इन्फॉर्म किया, देयर वॉज समवट 6 to 7 सेंटीमीटर वजाइनल टेयर दैट हैज़ एक्सटेंड टूवर्ड्स द पोस्टीरियर फॉर्निक्स। अभी पोस्टीरियर फॉर्निक्स क्या होता है उसके कॉन्टेक्स्ट के लिए ये वाला इमेज देख लो। सो ड्यूरिंग हर फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स, unknowingly और knowingly her husband has put undue pressure, और उसकी वजह से पूरा वजाइना का लेसरेशन हो गया था और उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था। अभी आगे के प्रोसीजर के लिए हमने उनकी आईवी लाइन ली, आईवी फ्लूइड स्टार्ट किए, ब्लड टेस्ट कराने चालू कराए, एंड टू आवर सरप्राइज़ उन्होंने 2-3 घंटे तक घर पे वेट किया था। उसकी वजह से सारे 3-4 अच्छे से एक्सेल डबल एक्सेल साइज़ के पैड्स वाले इतना भर भर के उनको ब्लीडिंग हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्लड लॉस वो बहुत ज़्यादा पेल हो गई थी। एंड कैन यू इमेजिन कि उनका HB कितना था, द हीमोग्लोबिन दैट वाज 4, ठीक है। एंड व्हेन दैट टाइप ऑफ ब्लड लॉस हैपन्स, योर एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कम्स इनटू द रेस्क्यू इमरजेंसी, और कोलैप्स भी हो सकती थी वो। एंड टू स्टॉप दैट ब्लड यू हैव प्लेटलेट्स, द वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं ब्लड में, प्लेटलेट्स भी होते हैं, दैट हेल्प्स फॉर्मिंग द क्लॉट। मतलब क्लॉट बन के कैसे आप गिरते हो और यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है ताकि आगे ब्लड लॉस ना हो पाए। सो वहाँ पे क्लॉट बनाने के लिए भी उनकी बॉडी के सारे प्लेटलेट भी, मतलब व्हेन वी ड्रॉ द ब्लड वर्क, उसमें उनके प्लेटलेट आए समवट 40,000, जो 1.5 लाख से ज़्यादा होने चाहिए। इमरजेंसी में हमने ब्लड मंगवाए, ब्लड प्रोडक्ट्स मंगवाए, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर्स को बुलाए, पूरी टीम आ गई, तकरीबन 15-20 डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए, बिकॉज दीज हैपन्स वेरी रेयरली। और उनको जनरल एनेस्थेशिया में फिर हमारे सीनियर डॉक्टर्स आए और उन्होंने वहाँ पे स्टिच ले लिए। सो कैन यू इमेजिन कि शाम को शादी हुई है और रात को उनको 4 से 5 ब्लड देने पड़े, और 4 से 5 जो है वो वाइट ब्लड, मतलब प्लेटलेट रिच कॉन्सेंट्रेट, क्रायोप्रेसिपिटेट और वो सारी चीज़ें देनी पड़ी। एंड द नेक्स्ट मोमेंट, मतलब आफ्टर सम 30-40 मिनट्स उनको ऑब्स्टेटिक ICU में शिफ्ट किया गया। सो कैन यू इमेजिन, मतलब घर वाले लोगों को क्या बताएं कि शाम को शादी हुई है और रात में जो है वो नई नवेली दुल्हन है वो ICU में आ गई है। 3-4 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद वो अच्छी तरीके से ठीक हो गई। बट आई डोंट नो, मतलब ये इंसिडेंट की वजह से उनके मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट हुई होगी। आई फील कि पूरी ज़िंदगी वो ये ट्रोमा को लेके हुए चलती जाएगी। व्हाट इफ़ दिस इज़ गोइंग टू हर्ट, हाउ शी हैज़ अलाउड हर हस्बैंड फॉर दैट पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स इन द फ्यूचर, वगैरह वगैरह। मतलब सवाल अगर पूछने जाए तो उसका कोई एंड ही नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट दे हैव रिकग्नाइज दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। ऑफ कोर्स थोड़ा लेट हो गया था, बट एटलीस्ट दे हैव रिकग्नाइज, दे टुक द मेडिकल सपोर्ट, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट दे हैव डन। अदरवाइज तो पता नहीं घर पे शायद वो कोलैप्स ही हो जाती। सेकेंड इंसिडेंट हैपेंड एट आवर प्राइवेट हॉस्पिटल, मतलब तकरीबन रात के 3 या 4 बजे थे, एंड देयर कम्स अ कपल विद देयर यंगर सिस्टर। मतलब जो दूल्हा था उसकी बहन के साथ सिर्फ 3 लोग आए थे। एंड शी वॉज सेइंग, उनकी शादी का समवॉट 3rd या 4th डे था, एंड शी सेड कि उनको अचानक से पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, क्लॉट्स आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, पीरियड्स बंद ही नहीं हो रहे, और अचानक से ऐसा कैसे हो गया, थोड़े दिन पहले ही आए थे। नाउ अगेन साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन आर, मेहंदी लगी थी, सिंदूर था, हिंदू पेशेंट थी, साड़ी पहनी हुई थी, बहुत सी मतलब हाथों पैरों में मेहंदी थी, देयर वर लॉट्स ऑफ साइंस। सो पहले तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। देन जब हमने उस लेडी को एग्जामिन करने के लिए लिया तब उन्होंने बोल दिया कि हाँ इस चीज़ की वजह से ऐसा हुआ है। और जो दूल्हे की बहन थी उन्होंने भी साइड में मुझे ले जाके ये सारी चीज़ें बता दी कि शायद ऐसा हुआ है कि फ़र्स्ट टाइम उनका इंटरकोर्स हुआ है और उसके बाद ये चीज़ हुई है। नाउ टू आवर सरप्राइज़ वो वाइटली तो बिल्कुल ही स्टेबल थी, क्योंकि वो आधे घंटे में ही आ गई थी। मतलब उनका पल्स, ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ें नॉर्मल थी, और 1 या 2 पैड्स ही स्टेन हुए थे, उसमें बड़े बड़े से क्लॉट्स थे। जब मैंने उनको एग्जामिन किया तो पोस्टीरियर और लैटरल वजाइनल वॉल पे, इफ़ यू डोंट नो वी हैव 4 वॉल्स ऑफ वजाइना, फैसिनेटिंग नो। सो वहाँ पे टेयर्स हो रखी थी, 3-4 सेंटीमीटर की थी, उसमें से फ्रेश ब्लड आ रहा था, पूरे क्लॉट से भरी पड़ी वजाइना थी, और हाइमेन भी लेसरेट हो रखा था। सो इमीडिएटली हमने IV सपोर्ट लिया, पाइंट्स चालू किए, ब्लड, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स की चेकअप के लिए भेजा, और इमरजेंसी में लोकल एनेस्थेशिया देके मैंने वहाँ पे सूचर कर दिया। नाउ कम्स द फनी पार्ट। सो दे सेड कि अभी शादी हुई है, शादी की 3री-4थी रात है, हम घर पे क्या बोलेंगे कि रात को 3-4 बजे आप गायनिक के हॉस्पिटल में क्यों जाते हो, अभी शादी हुई है।
सो दे सेड कि अब भी हमको घर जाना ही पड़ेगा। अभी ये सारी चीज़ें ख़त्म होते होते सुबह के 5 बज गए थे। नाउ इमेजिन दैट वी कैन थिंक दैट 100 to 200 ml का ब्लड लॉस हुआ है, इतने सारे टाँके लगे हैं, एटलीस्ट 2 वजाइनल टेयर को सूचर करते करते उनको हम 1 घंटे में कैसे घर जाने दे सकते हैं। सो स्टिल आई हैव मेड देम अंडरस्टैंड कि देखो घर जाके कुछ भी हो सकता है। वॉट इफ़ द ब्लड इज़ गोइंग टू स्टार्ट कमिंग आउट अगेन, क्या पता घर जाके वो बेहोश हो गई तो, अगर ऐसा हुआ तो आप लड़की के माँ बाप को क्या जवाब देंगे। सो देन आफ्टर अ पॉइंट दे अंडरस्टूड। सुबह तक वो रुके, फिर से हमने एग्जामिन किया, ब्लीडिंग सारा बंद हो गया था, फिर वो चले गए। दूसरे दिन वो अपने मम्मी पापा के घर चली गई एंड सम वॉट अराउंड 2 weeks लेटर शी केम फॉर एग्जामिनेशन ऑफ हर वजाइना एंड दो स्टिचेस। सारी चीज़ें सही थी, बट द पॉइंट इज़ कि उन्होंने टाइम पे अपनी चीज़ रिकग्नाइज़ की और हॉस्पिटल आके सपोर्ट ले लिया। तो ये है वो बड़ी वाली दुर्घटना होते होते बच गई। पोस्टकॉइटल टेयर्स आर वेरी वेरी रेयर, मतलब 1 to 2% केसेस में ही होते हैं, बट जब भी ये चीज़ होती है तब उसको रिकग्नाइज़ करना, इमीडिएट हॉस्पिटल आके हेल्प लेना, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ना हो उसके लिए मेक श्योर यू कम्युनिकेट विथ योर पार्टनर। फर्स्ट टाइम है या 100th टाइम है, कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू फील दैट इवन आफ्टर एडिक्वेट फोरप्ले इज़ ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर किसी चीज़ की वजह से वो नहीं हो पा रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ वजाइनल ड्राइनेस डाउन देयर, इनफ लुब्रिकेशन नहीं है, देन यू कैन यूज़ द वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स एज वेल एंड डोंट हरी इनसाइड योर एक्ट। ऑर्गेज़म शुडंट बी योर एंड गोल, your partner and your comfort should be your first goal, and with each and every step there has to be a proper communication. Prior insertion also there has to be a proper communication, और बहुत ज़्यादा फोर्स तो लगाना ही नहीं है। वजाइना इज़ गोइंग टू बी 3.5 to 4 inches कैनाल, मतलब ऐसा नहीं है कि दैट इज़ गोइंग टू बी 15 सेंटीमीटर, आपकी फुट पट्टी जो होती है उतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी कैनाल है। Okay, so you have to keep all these things in mind. You have to understand how a female anatomy is, how a male anatomy is, and rather than relying upon those myths, मतलब पॉर्न में ऐसा है, यहाँ पे हमने ऐसा पढ़ा था, किसी आंटी ने, किसी अंकल ने शादी से पहले हमको ये सारी चीज़ें बताई थी। Don't fall for those bullshits. Learn every single thing by yourself, and then only whenever you are comfortable, then only you proceed further. सो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। इफ़ हुआ है देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखने वाले हो, मेक श्योर यू कमेंट बिलो, एंड इफ़ यू हैव दैट क्वेश्चन दैट व्हाट इफ आफ्टर इंडल्जिंग इनटू रेगुलर फॉर्म ऑफ इंटीमेसी your vagina is going to get loose, then make sure you watch the next video. The link is in the description, and I'll see you in my next one for sure. Bye.